Welcome to We Learn Networks. This is session number 4 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter e-marketing processes. The topic that we will cover in these sessions are implementing e-marketing plans and strategies, creating and managing a website, determining organizational structure in e-marketing, monitoring e-marketing activities, evaluating the performance of e-marketing activities. The first topic is introduction and implementing e-marketing plans and strategies. This unit analyzes the process of implementing e-marketing plans and strategies specifically related to creating and managing a corporate website. The process of determining the organizational structure in e-marketing and monitoring e-marketing activities are also discussed in this unit, besides covering the process of evaluating the performance of e-marketing activities. ये जो process किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं किसी भी ई मार्केटिंग के लिए, या फिर किस तरीके से हम ई मार्केटिंग को मॉनिटर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. Implementing e-marketing plans and strategies. Let us study the three main stages involved in implementing an e-marketing plan and strategy. The first stage is evaluate and marketing options. जो पहला स्टेज होता है वो होता है इवेल्युएट करना कि किस तरीके से हम मार्केटिंग ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे. The first step in marketing and e-marketing plan is to evaluate the available marketing options and decide which channel fits your requirement. इस चैनल में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मार्केटिंग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और कौन से ऑप्शंस हमें ये दिखाते हैं कि हम किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और उनमें से जो बेस्ट हमें लगता है उसे हम डिसाइड करते हैं कि किस रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी मार्केटिंग ऑप्शंस हम बेस्ट हमारे लिए बेस्ट सूट करती है. The following are a few most widely used communication channels in e-market. First is emailing. Email can be used for creating good relations with customers. It helps in updating the new offers to customers. It is less disruptive than telephonic marketing. Regarding sham messages, one should abide by the government regulations. जो पहला तरीका, जो पहला चैनल होता है ई मार्केट का, वो ईमेल्स होता है, और ईमेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि हम कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिलेशन बना सकें. ये जो होती है अपडेट देती है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स को नए नए ऑफर्स दे सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम हमारे कस्टमर्स को विदाउट डिस्टर्ब किए किस तरीके से हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें ईमेल के अंडर आती हैं. दूसरा जो तरीका है वो है एसएमएस, मीन शॉर्ट मैसेज सर्विसेज. टुडे द मोबाइल फोन हैज़ बिकम अ मच एंड इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन इन डे टू डे लाइफ. Hence, SMS, which is a low-cost mode of communicating, is being preferred by marketers. However, one should be careful while marketing through SMS, as some people may not like being disturbed during their busy work schedule. SMS जो है वो दूसरा एक बेस्ट तरीका है कि हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकें, और ये बहुत ही चीपेस्ट तरीका है कि हम हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन्स है आजकल सबके पास में कॉमन हो गए हैं. डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोबाइल फ़ोन. और जो एसएमएस है वो लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग मेथड्स या फिर लो कॉस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बन सकते हैं फॉर मार्केटर्स. वेबसाइट्स जो तीसरा चैनल है हमारी ई मार्केटिंग के लिए, जो हमें हेल्प कर सकता है कि किस तरीके से हम मार्केट ऑप्शंस को इवेल्युएट करें, वो होता है वेबसाइट. अ वेबसाइट इज यूज्ड वाइडली टू मीट एनी मीटिंग नीड्स. One big advantage of advertising through a website is that you can include a lot of pictures and video contents in your advertisements, which can make your offer look very attractive. However, in today's highly competitive world, you need to have a lot of special features in your website to attract customers.
जो वेबसाइट्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, पर जो एक एडवांटेज है हमारी वेबसाइट्स का वो ये है कि हम इसमें वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को या फिर हम अपने एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई कर सकें और उसे अट्रैक्टिव बना सकें। पर जो एक चीज़ ये है कि वो ये है कि आजकल जो सिनेरियो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का है, इसीलिए हमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। जो दूसरी मेन स्टेज होती है ई मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए या प्लान करने के लिए या उनकी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, वो ये होती है कि प्लान द रोल आउट फेज। The next step is to analyze and decide how to implement the product promotion activities. जब हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, जो दूसरा तरीका आता है वो ये आता है कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी मार्केटिंग डिसीजंस को, या किस तरीके से हम एनालाइज या डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन एक्टिविटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, if you have decided to go to the mobile SMS method, you need to figure out who will be carrying out the task. Do you want to tie up with a special agency or do you plan to manage it internally? Again, if you want to manage it with the internal resources, what are the training implications? What would be the time required for the team to learn and get accustomed to the new system, etc. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी प्रोडक्ट प्रमोशंस को, और वो एग्जाम्पल है कि अगर हमने एसएमएस मेथड चूज किया है हमारी किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन हम इस टास्क को कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, कि एसएमएस कौन भेजेगा, हम एक स्पेशल एजेंसी को हायर करें ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, या फिर ये जो एसएमएसेस हैं वो हमारे इंटरनल वर्कर्स ही या इंटरनल एम्प्लॉयज ही सेंड करें। अगर इंटरनल एम्प्लॉयज ही सेंड कर रहे हैं तो कैसे वो उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करी जाएगी, या किस टाइम में हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम उन्हें नए सिस्टम से अडेप्ट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी प्लान द रोल आउट फेज में आती है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट ई मार्केटिंग। यू विल दैट what follows now are the typical activities in this phase which are any important and relevant training should be rolled out। क्या कोई relevant implementation technique भी हमें प्लान करवानी चाहिए। स्टाफ फीडबैक एंड इन्वॉल्वमेंट शुड बी एनकरेज। जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें स्टाफ का फीडबैक भी होना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। दिस विल असिस्ट इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज स्टाफ बाय इन कैन क्रिएट और ब्रेक अ प्रोजेक्ट। बहुत ही स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन रखनी चाहिए, असिस्ट करनी चाहिए हमें स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टाफ को, क्योंकि अगर स्टाफ का बाय इन प्रॉपर नहीं है, मीन्स अगर स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट या फिर ब्रेक कर सकता है। अ क्रॉस डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। हम कोई भी एक क्रॉस डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि हमें असिस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें और इंश्योर कर सकें कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट बचता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई मार्केटिंग में वो है प्रैक्टिसेस शुड बी कॉन्टिन्यूसली रिव्यूड अगेंस्ट ई मार्केटिंग रेगुलेशंस। जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ई मार्केटिंग के लिए हमें उन्हें बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए, उनके कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशन सेट हैं उनके अकॉर्डिंग। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ वेबसाइट। Let us study the four major functions of website design, and these are planning the site, designing the site, building the site and maintaining the information and structure। जो फोर मेजर फंक्शंस हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, वो ये फंक्शंस गैदर करते हैं। पहला फंक्शन है कि किस तरीके से हम साइट को प्लान करेंगे, किस तरीके से हम उसे डिज़ाइन करेंगे। जब डिज़ाइन हो जाएगा तो उसकी बिल्डिंग किस तरीके से होगी, मीन्स उसका
डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, और लास्ट की जब वो डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसमें किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग द साइट, वो कहता है अ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड management plan should be created first, as the lack of good plan will not serve the future of website well। हमें एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले, उसकी डेवलपमेंट से पहले एक अच्छा सा प्लान क्रिएट करना चाहिए। अगर हम बिना प्लान के काम करना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हमारी आगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो है वेबसाइट की, उन पे खरा नहीं उतर पाएगा। रिसोर्सेज एंड स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग करने के लिए। फॉलोइंग आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर अ वेबसाइट। कुछ जो क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं वेबसाइट की प्लानिंग के लिए वो हैं, हु विल बिल्ड एंड मेंटेन द वेबसाइट एंड वेयर विल इट बी होस्टेड। कौन कौन एक वेबसाइट को बनाएगा या वो कहाँ पे होस्ट करी जाएगी। इफ एनी इनिशियल डिजाइनर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड बिल्ड, it is the maintenance also going to be contract or done in house। मीन्स अगर हमारी जो इनिशियल डिजाइनिंग है वो अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या उसकी मेंटेनेंस भी वही मैन्युफैक्चर करेगा या फिर हम इंटरनली मैनेज कर लेंगे उसकी इंटरनल वर्किंग को। तीसरा क्वेश्चन है, इफ अ स्टाफ मेंबर हैज द इनिशिएटिव टू मेंटेन द साइट, डू दे हैव सफिशिएंट टाइम एंड राइट स्किल टू डू द जॉब। अगर कोई स्टाफ मेंबर ही इनिशिएट ले रहा है कि वो साइट को मेंटेन करेगा तो क्या वो उसके पास में सफिशिएंट टाइम है ये का जॉब परफॉर्म करने के लिए, और क्या उसके पास में इतनी स्किल है कि वो एक साइट को मेंटेन कर सके। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज द सफिशिएंट बजट अलॉटमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट बजट हमने अलॉट किया है या नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही मेन फैक्टर रहता है किसी भी वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट इज होल्डिंग अ मीटिंग while creating a website, including the people who are going to work on the project in planning process is very important functions। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें उन लोगों की जो कोई भी एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा हमें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यही जो मीटिंग है वो बताती है कि क्या क्या हमारी चीजें एक मीटिंग में या फिर वेबसाइट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मीटिंग होगी उनके कुछ पर्पसेस होते हैं, वो ये होते हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए मीटिंग का। अगर हम कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो वो किसी भी ना किसी पर्पस से होती है। तो इस केस में जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो पर्पस क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबसाइट, की वेबसाइट का क्या पर्पस है, वेबसाइट क्या करना चाहती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। Once the purpose and detail of website are clear, you must set out to create a structure for website। जब हमें हमारा पर्पस क्लियर हो जाता है कि हमारी वेबसाइट क्या करेगी, उसके बाद में हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहिए कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट होगी या उसमें क्या क्या कंटेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट ऑफ द होम पेज। टू एग्जैक्ट कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन द होम पेज शुड बी प्लान्ड। हमें ये प्लान करना चाहिए कि होम पेज पे कौन कौन से कंटेंट होंगे ताकि यूजर को पता रहे कि या फिर यूजर के लिए आसानी हो कि हमारी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट इज content recommended items। There are certain things which are very essential while planning to create a website। They are mandatory to mention the corporate identity or logo। To create trust, your postal address and email contact should be added। मीन्स कि जो कंटेंट होना चाहिए रिकमेंडेड साइट आइटम्स जो होने चाहिए किसी वेबसाइट में, वो होना चाहिए कि हमारी कंपनी का सबसे पहले तो लोगो होना चाहिए। अगर कंपनी का लोगो ही हमारी वेबसाइट में नहीं होगा तो फायदा नहीं है उस वेबसाइट का, या फिर कस्टमर्स को ये पता नहीं लग पाएगा कि क्या कंपनी ओरिजिनल है या फेक है। दूसरा कि अगर हमें कस्टमर्स के साथ में ट्रस्ट क्रिएट करना है तो हमें पोस्टल एड्रेस और ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर भी होम पेज में ऐड करना चाहिए हमारी कंपनी का, ताकि ये भरोसा रहे कस्टमर्स को कि एड्रेस सही है। Some important links that are to be added are
रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक्स, जो कुछ कंटेंट हैं वो होने चाहिए रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक। मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम डालें और हमारी साइट आ जाए, या फिर कुछ लिंक्स होने चाहिए पॉलिसीज के लिए जो बताएं कि क्या क्या हमारी प्राइवेसी स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज वर्डिंग। Along with the layout of website, the words that are used in content are also important. सिर्फ ये नहीं है कि हमने अगर वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो काफ़ी हो। जो हम वर्डिंग लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट में, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्रिपेंसीज पैदा करे, वो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। वर्डिंग पे हमें खास असर देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरिंग योर कंटेंट। जब हम प्लान कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा कंटेंट रहेगा वेबसाइट पे, तब हम उसे स्ट्रक्चर करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर रखेंगे और किस तरीके से हमारा कंटेंट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आर डायरेक्टरीज। The next level of homepage should be structured into the active directories. Each directory file will be named with the file extension index.html. This will be the homepage for the directory. Directories क्या होती है, ये बताती है कि होम पेज में कौन कौन से लेवल्स बने हुए हैं, और ये जो लेवल्स होते हैं वो नाम होते हैं पर्टिकुलर फाइल के जो हम इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट में। Getting a theme for your site. A fast loading website is always welcomed by any customer. It is a misconception that to extract the youth, a website needs to employ a lot of gimmicks. हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें गिमिक्स का यूज़ करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमारी साइट जल्दी से जल्दी लोड हो, क्योंकि आजकल की जो यूथ जनरेशन है उनकी क्वालिटी डिफर करती है। उनको गिमिक्स नहीं चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि हमारी साइट जो हो वो अट्रैक्टिव हो और साथ के साथ वो फास्ट लोडिंग भी हो। तो ये काम सारा हम होल्डिंग अ मीटिंग में रख के करते हैं। ये मीटिंग बताती है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। और नेक्स्ट है मैनेजिंग द वेबसाइट, कि किस तरीके से हम वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो जो पहला तरीका है, once our website is up and running, there are many things that you need to do on a regular basis to ensure that your website remains useful and फंक्शनल। जब एक बार आपकी वेबसाइट बन जाती है और रनिंग स्टेट में आ जाती है, तो तब हमारा काम वहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाता। हमें उस वेबसाइट की प्रॉपर फंक्शनिंग को ध्यान में रखना चाहिए और उसको मैनेज करके रखना चाहिए। जो कुछ टास्क हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वो होते हैं प्रमोशन। हमें वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली प्रमोट करते रहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट कर पाए हमारे कस्टमर्स के पास में या हमारे प्रोडक्ट के पास में। चेक योर लिंक्स। हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि जो हमारी वेबसाइट में लिंक्स गिवन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर सही नहीं है तो उन्हें दोबारा से ठीक करना चाहिए। चेंज योर साइट। हमें बार बार अपनी साइट में अपडेशंस करते रहने चाहिए ताकि जो यूज़र हैं वो हमारी साइट से बोर ना हो जाए। नेक्स्ट इज रिव्यू योर स्टैटिस्टिक्स। जो भी स्टैटिस्टिक्स या डेटा हमारे पास में थ्रू वेबसाइट्स आ रहे हैं उन्हें बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि अगर कुछ अपडेशंस हमें चाहिए अपनी साइट में या किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेंट्स आती हैं तो वो हम उन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू रिव्यू कर सकें। स्टे अप टू डेट। हमें अप टू डेट रहना चाहिए, मीन्स ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट बहुत ही पुराना प्रोडक्ट शो कर रही है और आजकल हम नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी साइट जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए। रिव्यू योर साइट। हमारी साइट्स पे रिव्यूज़ भी होने चाहिए, मीन्स बार बार हमें रिव्यू करते रहना चाहिए कि हमारी साइट में कोई फॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं है। अगर कुछ फॉल्टी आ रहा है तो उसे हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग जो बहुत ही एसेंशियल होती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि हमें अपनी सिक्योरिटी साइट्स को चेक करते रहना चाहिए, साइट की सिक्योरिटी को चेक करते रहना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रैप डोर नहीं होना चाहिए जो हमारी साइट की सिक्योरिटी को हार्म करे। डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ई मार्केटिंग। पीपल हु मेक अप इंटरनेट मार्केटिंग टीम आर। कुछ जो लोग जो बनाते हैं इंटरनेट मार्केटिंग टीम को वो होते हैं
फर्स्ट जो होता है वो मैनेजर होता है, जो कि इंटरनेट मार्केटिंग डायरेक्टर होता है, जो बताता है कि किस तरीके से काम होगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं कोऑर्डिनेटर्स या फिर इंटरनेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, की जो मैनेजर के अंडर वर्क करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट मैनेज होगा। उसके बाद में इंटरनेट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कि ये बताते हैं, ये हमें रिव्यू देते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं हमारी वेबसाइट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट रिसर्च स्पेशलिस्ट, ये जो वेबसाइट रिसर्च स्पेशलिस्ट होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये वेबसाइट को रिसर्च करते रहते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें इनमें इम्पॉर्टेंट हैं। और लास्ट है वेब कंटेंट राइटर, कि जो वेबसाइट बन रही है उनमें क्या क्या कंटेंट लिखा जाएगा वो हमारे वेब कंटेंट राइटर बताते हैं। फोटोग्राफी एंड अदर मीडिया स्पेशलिस्ट, ये क्या होते हैं कि जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने मीडियाज़ को या फिर जो भी हम इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फोटोग्राफी और मीडिया स्पेशलिस्ट का काम होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर हमारा डिज़ाइन करता है कि किस किस तरीके के ग्राफिक्स हमारी वेबसाइट में यूज़ होंगे। और लास्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इंजीनियर, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट इंजीनियर किस तरीके से हमारी एक वेबसाइट को डेवलप करेगा। मॉनिटरिंग ई मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हम कैसे मॉनिटर करेंगे। जो पहला तरीका है वो है ट्रैकिंग एंड साइट एनालिसिस टूल्स, जो हमारे साइट एनालिसिस टूल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। मार्केटिंग विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ़ यू नो वाई पीपल विजिट योर वेबसाइट, जब हमें पता रहेगा कि हमारी वेबसाइट को लोग क्यों चाहते हैं, तभी हम अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे। ये जो हमारी ट्रैकिंग और साइट एनालिसिस टूल्स है, ये हमें हेल्प करती है कि हम कलेक्ट कर सकें, मेजर कर सकें, एनालिस कर सकें, रिपोर्ट दे सकें इंटरनल डेटा के लिए, या फिर समझ सकें या ऑप्टिमाइज कर सकें हमारी वेबसाइट्स को। The two main technological approaches for collection of data are log file analysis and page tagging। जो दो मेन टेक्नोलॉजिकल अप्रोच हम यूज़ करते हैं हमारी ट्रैकिंग एंड साइट एनालिसिस टूल्स में, वो होता है, फर्स्ट होता है लॉग फाइल्स, जो रीड करती हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारी ट्रांजैक्शंस हुई है हमारे वेब सर्वर पे, और दूसरा है पेज टैगिंग, जो बताती है कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स रन हुए हैं या फिर कौन कौन से पेजेस हमारे रन किए हैं एक पेज टैग टूल्स के थ्रू। सेकेंड इज यूजर सर्वे एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग टू मॉनिटर ई मार्केटिंग एक्टिविटीज। Another way of checking traffic to your website is asking users directly। हम डायरेक्टली यूजर से पूछते हैं कि हमारी वेबसाइट आपको कैसी लगी। तो ये एक तरीके का सर्वे होता है, यूजर से हम सर्वे लेते हैं कि आपको हमारी साइट में क्या पसंद आया और क्या नापसंद आया। Evaluating the performance of e-marketing activities। We will now go through some techniques which can be employed while evaluating the performance of e-marketing activities। हम किस तरीके से हमारी e-marketing activities को evaluate कर सकते हैं, उनकी performance को evaluate कर सकते हैं, ये हमारा अभी इस टॉपिक में आता है। पहला जो है वो है मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरियाज यूज करते हैं वो होते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड विद फोकस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज, स्ट्रेटजीज एंड मैट्रिसेस, कि हम इसको यूज कर सकते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, स्ट्रेटजीज के थ्रू और मैट्रिसेस के थ्रू। जो बेसिक फंक्शन होता है एमपीएम का वो होता है कि हम एक फ्रेमवर्क मैट्रिक्स क्रिएट करें ताकि हम मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय मेनी कंपनीज लाइक इंक्लूडिंग IBM, Intel and Citrix। Next is performance management। Performance management is among the many processes applied to business operations such as manufacturing, logistics and product development। Data analysis। Collecting the appropriate data is one of the means to measure marketing effectiveness। जो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मीन्स है वो ये है कि हम डेटा को कलेक्ट कर सके ताकि एक प्रॉपर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को हम यूज कर सकें। अ क्रूशियल पार्ट इज मेजरिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस इज कलेक्टिंग द राइट कंटेंट। जो मेजर क्राइटेरिया है मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने का वो ये है कि हम सही कंटेंट को कलेक्ट करें। ये नहीं है कि कोई भी हमने कोई भी डेटा कलेक्ट
कर लिया। और जो लास्ट पॉइंट है वो है मैट्रिसेस एंड मैनेजमेंट। मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स परमिट्स मार्केटिंग प्रोफेशनल टू वेरीफाई बजट्स बेस्ड ऑन रिटर्न्स एंड फॉस्टर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये जो मैनेजमेंट और मैट्रिसेस है वो मार्केटिंग प्रोफेशनल को बजट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के थ्रू और डैशबोर्ड्स के थ्रू। डैशबोर्ड सिंपली एक स्पीडोमीटर की तरह होता है जो रिप्रेजेंट कर, जैसे हमारी कार्स में स्पीडोमीटर्स होते हैं, डैशबोर्ड वही होता है और ये बताते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल को कि कितनी तेजी से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रही है। डू इट योरसेल्फ। These are the questions that you have to do by yourself. First one is briefly describe the organizational structure in e-marketing, and second one is identify the issues to be highlighted while creating a corporate website. Thank you and have a nice day.